اچھا جی، ہم نے اب تک دو چیزیں اس کی پڑھ لی ہیں. 10 نمبر کا جو پیپر ہے وہ لیگل ایتھکس والے پورشن میں سے آتا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جی رولز جو آپ کے کنڈکٹس ہیں ریگارڈنگ ٹو ادر ایڈوکیٹس، یہ چیز ہم نے پہلے دیکھی تھی. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو کلائنٹس. ٹھیک ہے جی، آج ہم دیکھیں گے ڈیوٹی ٹو دا کورٹ کہ بینگ این ایڈوکیٹ آپ کی کورٹ کے حوالے سے جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیے جو دو ہم نے پڑھے ہیں، پچھلے 2 لیکچر ہوئے تھے ہمارے، وہ کلیئر ہو گئے سب کے؟ جی سر کلیئر ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اس کو ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں نے پڑھ لیے؟ ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس کو؟ جی سر پڑھ لیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ڈیوٹی ٹو دا کورٹ 159 جو رول ہے وہ آپ لوگ جو ہے اس کو اوپن کر لیں، اور رول نمبر 159 یا 159. اچھا جی، 159 رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف این ایڈوکیٹ ٹو مینٹین ٹوورڈز دا کورٹ اے ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ not for the sake of the temporary increment of the judicial office, but for the maintenance of its supreme importance. 159 جو رول ہے اس کا جو بیسیکلی آپ کو یہ جو بتا رہا ہے چیز، یہ اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کورٹ کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ ریسپیکٹفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کا مقصد آپ لوگوں کا کوئی عارضی فائدہ عدالت سے لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کے اور آپ جو یہ جوڈیشری ہے اس کی ایک آپ جو ہے وہ سپریم امپورٹنس سمجھ کے اس کی جو ہے وہ آپ اس کو عزت دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہماری طرف جو چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ لڑنے والی سائڈ پہ ذرا زیادہ جاتے ہیں، جس کو جوتے مار دیے، چپیڑا مار دی، چیئر اٹھا کے مار دی. مطلب اب آپ لوگ اگر وکیل بننے جا رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی کنڈکٹ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اگر آپ لوگ کوئی ایسا کنڈکٹ کریں گے تو وہ رول نمبر 159 کی کلیئر وائلیشن ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. نیچے کی جو 2-4 لائنیں ہیں وہ آپ لوگوں نے خود پڑھ لینی ہے. اس کا مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے. صحیح ہے. لائن بائی لائن پڑھا کریں، کیونکہ اب لائن بائی لائن پڑھیں گے تب ہی پاس ہوں گے، ادروائز آپ پاس نہیں ہوں گے. اچھا جی، 160 رول ہے جی. نیکسٹ، an advocate shall not advise a person whose testimony could establish or tend to establish a material fact to avoid service of process or conceal himself or otherwise to make his testimony unavailable. اب کچھ وکلا ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کلائنٹس کو یا لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر انہوں کو ٹیسٹیمنی دینی ہے تو بھائی جی آپ لوگ بھاگ جائیں. ٹھیک ہو گیا. یا پھر جو سمن سروس ہے اس کے اندر 2 نمبر ایڈریس فیڈ کر دیے تاکہ اگلے بندے کو سمن جائے ہی نہ، وہ عدالت آئے ہی نہ، اور آپ باہر باہر ڈگری لے لیں. یہ جو چیز ہے ڈگری لینا، یہ جو چیز ہے یہ رول نمبر 160 کی کلیئر وائلیشن ہے. اس چیز سے بھی جو رول 160 ہے آپ کو منع کرتا ہے. یعنی کہ رول نمبر 160 آپ کو اس قسم کی جو 2 نمبر پریکٹسز ہیں جو کورٹس کے اندر چلتی ہیں ان چیزوں سے آپ کو روکتا ہے. آپ نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی. رول نمبر 161 ہے نیکسٹ، an advocate shall not advise a person an advocate shall not intentionally misquote to a judge, judicial officer or jury the testimony of a witness, the argument of the opposing advocate or the contents of a document. 161 سمپلی آپ کو یہ کہتا ہے کہ being an advocate اگر آپ جج صاحب کے سامنے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کوٹ نہیں کریں گے. اب بعض جو بڑے وکلا ہیں ان کی عادت کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ جو ہے غلط کیس لاز بھی بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یا وٹنس کو ٹیسٹیمنی ہے اس کو غلط انداز میں پیش کر دیا کہ وٹنس نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں.
या जो आर्गुमेंट्स अपोज आपके काउंसिल ने दिए उनको वो मिसकोट जो है वो रॉन्ग मिसकोट करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है रूल नंबर 161 आपको ऐसी चीजें जो है करने से रोकता है। आपने ऐसी चीजें जो है वो नहीं करनी। ठीक होगा जी। रूल नंबर 161 कंप्लीट आप लोगों ने उसको पढ़ लेना। इसका जो मेन थीम है वो ये है कि आपने इस तरह की जो प्रैक्टिसेस चलती हैं वो नहीं करनी। एक मिनट में इसको व्हाट्सएप को जरा ऑफ कर दूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। जी 162 है जी नेक्स्ट हमारे पास रूल। Marked attention and unusual hospitality on the part of an advocate to a judge or judicial officer not called for by the personal relations to the parties subject both the judge and the advocate to misconstructions of motive and should be avoided. An advocate should not communicate or argue privately with the judge as to the merits of pending cause, and he deserves rebuke and denunciation for any advice or attempt to gain from a judge special. अच्छा, यहाँ पे जो 162 है ना, आपको सिंपली यहाँ पे जो उसका थीम है वो ये कह रहा है कि आप जो है अपनी ना तो पार्टीज को कंपेल इस तरह से करेंगे कि फलां जज के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है जी। बाज जो वकला साहिबान हैं वो कोर्स के अंदर इस तरह के करते हैं कि अपनी जो पार्टीज हैं उसको डन बेसिस के ऊपर काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि 2 लाख दे दें, 4 लाख दे दें, जज हमारा बड़ा जानने वाला है, जज हमारा बड़ा ताल्लुक वाला है, मैं से इस केस का फैसला आपके हक में लेके दूंगा। तो इस तरह की जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं वो आपने नहीं करनी। और उसके बाद अगर आपका जज के साथ कुछ तरह से कोई ताल्लुक है भी सही, तो ऐसी सूरत में आपने उस केस से रिलेटेड जो भी आपके केसेस वहां पे पेंडिंग है उनके जो काज है या उन केसेस के ऊपर आपने बात नहीं करनी है। जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी। ठीक हो गया जी। या आपने कोई पर्सनल फेवर लेने की कोशिश नहीं करनी। अब बाज़ का बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो वकला साहिबान हैं वो शो ये करते हैं कि हमारा जज के साथ ये ताल्लुक है या हमारा ये है, ये है, ये है, और फिर बाद में पार्टीज को जो है वो मिसगाइड करके पैसे मरोड़ते हैं। तो ऐसे जो काम है या ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस जो है वो आपने नहीं करनी। आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस जज साहब के साथ वो आपकी है, वो आपकी रहनी चाहिए, लेकिन आप अपना जो वो एक आपका रिलेशन है आप उसको मिस यूज नहीं करेंगे और ना ही आप अपने क्लाइंट्स को इस हवाले से मिसगाइड करेंगे और उनसे इस किस्म की इलीगल प्रैक्टिसेस करेंगे। एक अच्छी तरह मुझे याद है जज साहब बता रहे थे, एडिशनल सेशन जज थे, उसने कहा जी कि अब हमें तो बाज़ औक़ात हमारे ड्राइवर भी सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। कैसे जी? मतलब कि हमारे ड्राइवर भी ना हमारे नाम पे कहते हैं जो मैं जज साहब के नाल ही रहना तो इन्हें पैसे दे दो थोड़ा कम करा देंगे। तो इस तरह की सूरत हाल भी जो है वो बेचारे जजेस को फेस करना पड़ती है। Rule number 163. The primary duty of an advocate engaged in public prosecution is not to convict, but to see that justice is done. अब देखें जी, ये आपके ऊपर अखलाकन भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब आप एक केस के अंदर एज एन एडवोकेट एंगेज हुए हैं तो आपका मकसद किसी शख्स को सजा दिलवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि फेयर ट्रायल हो और इंसाफ हो। ठीक हो गया। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं। अब आप अगर बीइंग एन एडवोकेट होंगे तो आपका चाहे जो क्लाइंट है उसने कत्ल किया हुआ भी हो, लेकिन आपने तो बचाने की कोशिश करनी ही करनी है। लेकिन रूल नंबर 163 हमें ये कहता है कि इंसाफ का कत्ल नहीं होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर जो है वो आना चाहिए। और आपकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो इंसाफ करना या इंसाफ दिलवाने के अंदर अपना रोल कंट्रीब्यूट करना है, ना कि आपका काम पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अंदर कन्विक्शंस की तरफ लेके जाना चीजों को। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेकिन अब जब आप हक पे हैं तो फिर आपने वो तो लेके जाना ही जाना है। रूल नंबर 164 है जी नेक्स्ट। पब्लिकेशंस इन न्यूज़पेपर बाय एन एडवोकेट एज टू पेंडिंग or anticipated litigation may interfere with the fair trial in the courts and otherwise prejudice the due administration of justice. Generally, they are
to be condemned if the extreme circumstances of a particular case justify a statement or reference to the facts should not reach the public. It is unprofessional to make them anonymously, and ex parte reference to the facts should not go beyond questions from the records, the papers on file in the court, but even in extreme cases, it is better to provide an ex parte statements. यहाँ पे जो बात है रूल नंबर 164 के अंदर की गई है वो है पब्लिकेशंस के हवाले से, न्यूज़पेपर्स के हवाले से, कि अगर न्यूज़पेपर्स के अंदर कुछ चीज़ें कोट हो रही हैं तो ऐसी चीज़ों को आप जो है वो कोर्ट के अंदर कोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक वो जस्ट एक न्यूज़ होती है, वो उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं आई होती। ठीक हो गया जी, इस हवाले से आपने अवॉइड करना है। अच्छा, अब बाल का तो फेयर ट्रायल के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो है, अब आप इस हवाले से भी कोई भी चीज जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे। आप अगर किसी केस के अंदर इंगेज हैं तो आप ऐसी चीजों को कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे, उनको रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लेके आएंगे। जो कोर्ट्स की फाइल्स हैं वहां पे तो आप डेफिनेटली उनको रिकॉर्ड पे लाएंगे, लेकिन आप पब्लिक में जो है या आप न्यूज़पेपर को यूज नहीं करेंगे, या आप उस केस के हवाले से न्यूज़पेपर्स के अंदर कोई चीज छापने या छपवाने के अंदर जो है, जब आप ट्रायल के अंदर होंगे उस केस के हवाले से, तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। रूल नंबर है 165, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू एंडेवर टू प्रिवेंट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस फ्रॉम outweighing judicial fitness in the appointment and selection of judges. They should protest earnestly and actively against the appointment or selection of persons who are unsuitable for the bench, and thus should survive to have elevated thereto only those willing to forego other unemployments, other employments. Rule number 165 का जो मेन थीम है वो ये है कि बीइंग एन एडवोकेट आपकी ये ड्यूटी है कि आप जो पॉलिटिकल आपकी कंसिडरेशंस हैं, पॉलिटिकल आपकी जो एफिलिएशंस हैं, उनसे आप इज्तनाब करें। ठीक हो गया जी। और जब जजेस की सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है ये हो रहा है, अब जैसे कि डायरेक्ट सिलेक्शन होती है हाई कोर्ट के जजेस की, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को ही सामने आना चाहिए जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, बायसनेस ना हो, वो लोग अनबायस्ड हों। पर अगर ऐसी कोई सिलेक्शन हो भी रही हो तो आपको चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट शीशा पिलाई दीवार बन जाए। तो आजकल तो खैर हर बंदे का ही जो है वो किसी न किसी के साथ आपकी एफिलिएशन जो होती है या आपकी हमदर्दी होती है, लेकिन आपको ऑफिशियली किसी भी जमात को ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप ऑफिशियली किसी जमात को ज्वाइन करेंगे तो कल को जब आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएंगे, आप एज ए जज जाएंगे, तो फिर आपके लिए मसले बन सकते हैं। ऐसी चीजों से आपको अवॉइड करना होगा। 165 रूल को आपने कंप्लीट रीड आउट कर लेना है। रूल नंबर 166, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट। ओके, अब आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा जी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट एंड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल, ये हो गया 166। इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड एंड इफ it is so possible to make satisfactory alternative arrangements. यहाँ पे ये कहा जा रहा है, रूल नंबर 166 आपको कहता है कि ये ड्यूटी है एक एडवोकेट की कि जब भी कोर्ट के अंदर उसका केस लगे तो वो या कोर्ट उसको बुलाए तो कोर्ट के अंदर उस मैटर के हवाले से पेश हो। अगर वो पेश नहीं हो सकता, वो कहीं और है, हाई कोर्ट गया हुआ है या किसी और वजह से, तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि कोई मुतबादल अरेंजमेंट्स करवा के जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का कोई कल केस लगा हुआ है और आपने हाई कोर्ट जाना है, तो आप अगर लोअर कोर्ट के अंदर आपके कुछ केसेस पेंडिंग है तो आप अपनी जगह पे कोई मुतबादल अरेंजमेंट करके जाएं, ताकि जो डिले है जस्टिस के अंदर वो ना हो, काम रुके नहीं बल्कि काम चलता रहे। ऐसा खैर होता तो कोई नहीं, हम लोग तो फिर जो है वो वकला के जो क्लर्क्स हजरात हैं वो डेट्स जो है इस हवाले से वो ले लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रूल नंबर 167, an advocate should in general refrain from volunteering his legal opinion or addressing any arguments in cases in which such advocate is not engaged unless called upon to do so in open court by a judge or judicial officer. In advancing any such opinion
he must do so with a sense of responsibility and impartially without any regard to the interest of any party. 161 का जो सिंपली थीम है वो ये कह रहा है कि आपने भाई आप क्योंकि प्रोफेशन ऑफ लॉज का से आपका ताल्लुक है या आप इसका हिस्सा हैं, तो आप ये राह चलते फकीया लोगों को नहीं देंगे, या आप जो है राह चलते जो है वो लोगों को मशवरे खाली नहीं देंगे। आपने अपने इस प्रोफेशन का ख्याल रखना, फ्री में जो है ना ही आर्गुमेंट्स करनी है और ना ही अपनी कोई बात जो है वॉलंटियरली जो है आपने एड्रेस करनी है, अपनी लीगल ओपिनियन उस हवाले से देनी है, जब तक कि आपको प्रॉपर उस केस के अंदर एंगेज ना कर लिया जाए। अब वकील जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस किसी का भी नहीं लड़ते। इवन के जब एतजाज हसन साहब ने, आई थिंक उनकी पीपी की गवर्नमेंट थी, तो एतजाज हसन ने केस लड़ा था गालिबन यूसुफ रजा गिलानी का, तो तब 1 रुपया या 3 रुपया कुछ इस टाइप की फीस उन्होंने चार्ज की थी। अब 1 रुपया या 3 रुपया जो है 2 रुपया, सॉरी 2 रुपये 100 रुपीज 100 रुपया जो है वो चार्ज की थी। और जब उनसे पूछा गया कि इतनी मिनिमम से अमाउंट आपने चार्ज ही क्यों की, अब 100 रुपया का तो फॉर एग्जाम्पल अब क्या आता है, तो उन्होंने मतलब यही कहा था जी कि वकील जो है वो फ्री के अंदर जो है वो केस नहीं लड़ता, तो कंसिडरेशन लेना आपके ऊपर लाजिम है। अब हम पीछे पढ़ आए हैं कि आप क्लाइंट की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा नहीं ले सकते एज अ फीस। पीछे रूल आप लोगों को पढ़ा दिया कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ठीक है 8 कनाल का केस है, केस में जीत गया तो 4 कनाल फीस की मद में मेरी हो जाएगी। इस हवाले से भी पाबंदी है। रूल नंबर 167 भी आपको विदाउट कंसिडरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आर्गुमेंट्स करने से और लीगल ओपिनियन देने से रोकता है। और अगर कोई अब बाज़ का ऐसे होता है कि कोर्ट्स जो है वो जो या जजेस हैं काबिल वकला को अपनी असिस्टेंस के लिए बुला लेती हैं, उनको समझ ना आ रही, अगर कोई सीनियर वकील आया खड़ा है किसी और केस के अंदर उनसे मशवरा बाज़ का ले लेते हैं, सर ये मैटर है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, तो वो जस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। तो अगर आपसे कुछ ऐसी कोई चीज रिक्वायर्ड की जाए कोर्ट की जानिब से, तो ऐसी सूरत में आप मशवरा दें लेकिन अनबायस्ड होके। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा आज का 167 तक। अब हमारा रह गया इसका आखिरी पोर्शन, वो है कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। कल हमारा ये इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद एक दिन छोड़ के हम लीगल एथिक्स का जो टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे। 10 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके तकरीबन 4 लेक्चर्स जो ये हमने लिए हैं, 4 क्लासेस ये कवर कर रही हैं, और इन 4 के अंदर जो है वो किसी भी सूरत के अंदर आपने कोताही नहीं दिखानी। ये 10 नंबर आपके फ्री के हैं और आपको ये फेल या पास करवाने के अंदर जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी 155 जो है पूछ रहे हैं कि controversies with clients concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services. Any lawsuits with clients should be restored to only to prevent injustice, imposition or fraud. यहाँ पे सिंपली जो है ना कि थीम इसका है 155 का वो ये है कि आपने जब भी प्रोसिक्यूशन करनी है या जब भी अपने क्लाइंट्स को मशवरा देना है तो फ्रॉड का, इम्पोजिशन का या इनजस्टिस का जो है वो मशवरा आप लोगों ने नहीं देना। जैसे हमने पीछे पहले रूल पढ़ा था कि आप जो है लॉ की वायलेशन के हवाले से जो है आप मशवरा अपने क्लाइंट्स को नहीं दे सकते जानते बूझते हुए। ठीक हो गया। या बेसिकली कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। बाज़ वकला की जो है आदत होती है कि एक मैटर आया एक केस के आगे 10 केस बनवा लेते हैं, तो ठीक है जी आप ये भी कर दें, आप ये भी कर दें। अब पार्टी को पैसे अपने पैसों की खातिर जो है वो यानी कि पार्टीज को इतना उलझा देते हैं। ठीक है फीस तो आ रही है लेकिन जो आपका एक जस्टिस वाला जो एक आपके ऊपर जो ड्यूटी थी वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो मिस हो जाती है। तो ये है कि हमारा आज का, तो कल इसको इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। परसों का दिन छोड़ के उसे नेक्स्ट डे हम इसका टेस्ट कंडक्ट इस हवाले से कर लेंगे। ठीक होगा जी। अब तक अगर आपको कहीं से कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज आज के लिए हमारा इतना ही होगा। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आती रहें।
हाँ, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं कोई भी पोर्शन आपके पास बुक सर हो? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर बीच में शायद नीलम के भी मैसेज आ रहे हैं, तो हाँ जी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी आपकी क्लास। तो मैं 154 तक तो मुझे वैसे भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो 155 से लेके जो है ना हमने ये मैंने कुछ भी नहीं सुना है। 155 आपने अभी रिपीट कर दिए है, बट 156, वो 157 हम एंड कल 158। जी हम कल कर चुके हैं उनको, इनको आज रिपीट नहीं किया जाएगा। वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप वहां से जो है कंसल्ट कर सकती हैं इसको। ठीक है जी, आज का जो है वो हमारा यहीं तक था। थोड़ा सा मसरूफियत एलएलएम की पेपर्स क्योंकि चल रहे हैं, इसलिए चीज़ों को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा या मैं रिपीट नहीं कर पा रहा। 2 एक दिन की मेरी मसरूफियत थोड़ा सा और है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह 1 घंटा कंप्लीट रखा करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो जो है वो हम अगर आप फिर कहेंगे रिपीट करने के लिए तो हम इन चीज़ों को रिपीट कर लिया करेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो मैं लिंक अभी सेंड कर दूंगा आपको, अब वहां से उसको काइंडली कंसल्ट कर लें। और अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो ये आपके ऊपर है, ना कि मतलब कि हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा वो जो टाइमिंग है, अब मैं बड़ी कोशिश करता हूँ 9:30 हुए, 9:40 या 41 के ऊपर हम जो है क्लास के अंदर आ गए हुए थे। तो आप सब लोग टाइम का जो है वो खास ख्याल रखा करें। यहाँ पे रिकॉर्ड इसलिए कर दिया जाता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में सेंड कर देता हूँ, या वो अपलोड करके आप लोगों को लिंक दे दिया जाता है ताकि आपका लॉस ना हो, आप उसको दोबारा सुन सकें। ठीक हो गया जी? एक सर सवाल, एक क्वेश्चन और था सर। आपने कहा कि ये खत्म हो जाने के बाद हाँ आप जी टेस्ट रखेंगे, तो उसमें सर जिस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD, तो वो ऑप्शन दिए जाएंगे हमें? जी, डेफिनेटली जो टेस्ट होगा तो वो टेस्ट बनाया ही इस चीज को मद्देनजर रख के जाता है कि आपको इम्तिहान के अंदर फायदा हो। इम्तिहानी नुक्ता नजर से वो टेस्ट जो है वो बनाया जाता है, तो वो उसी तरतीब से ही बनाया जाएगा। वो जो एमसीक्यूज हैं वो इस तरतीब से ही सेट किए जाते हैं कि वो आपका जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। लॉग एट का 10 नंबर का जो पोर्शन है, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाई हैं। अब आप लोगों ने काइंडली करना ये है कि वर्ड बाय वर्ड इसकी रीडिंग 2 से 3 मरतबा जरूर कर लेनी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर एक आध जो वर्ड मिस करके आप लोगों को रूल पूरा दे दे, तो आपको एक आध नंबर वो वहां पे वो वर्ड मिस कर दे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। ओके सर। जी तो सर ठीक ये है हमारा कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका कहने का मकसद ये है कि कल खत्म होने के बाद एक दिन का हमें गैप मिलेगा, जी। उसके बाद कल, हमारा। हाँ जी, उसके बाद आप लोगों का 50 नंबर का लीगल एथिक्स के पोर्शन का टेस्ट होगा। ठीक हो गया जी? वो आप एक दिन में, वो आप 2 दिन में, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया? मसरूफियत ना निकली तो बाकी एक दिन होगा, अदरवाइज एक दिन और बढ़ भी सकता है। लेकिन हमारा 10 नंबर का जो लॉग एट का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले 10 या 20 नंबर के पोर्शन की जानिब हम मूव कर जाएंगे। ठीक 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 हो गया जी? ठीक। जी ठीक है जी, कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह 9:30 बजे या 9:40 पे। मैक्सिमम 9:40 हो सकते हैं अगर कोई मसरूफियत निकले। आज व्हाट्सएप मेरा कनेक्ट लैपटॉप के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि यहीं से मैंने आप लोगों को लिंक जो है वो फॉरवर्ड करना होता है, तो 10 एक मिनट उस मसरूफियत के अंदर गुजर गया। अदरवाइज टाइम जो है ये हमारा फिक्स है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पंक्चुअल हो जाऊँ खुद थोड़ा सा ना। इट्स ओके सर। आपका एग्जाम भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आप हमें वक्त दे रहे हैं, की बड़ी बात है, और जो हमारी सबकी दुआएं मसरूफियत, आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुश्किल नहीं है, ये जो रूल्स हैं ये पढ़ने को तो एक ही दिन में 1 घंटे का ही काम है, एक एक लाइन बतानी होती है, लेकिन इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, एक तो थोड़ी खुद की मसरूफियत, और दूसरा मैं नहीं चाहता कि इन 10 नंबरों में से आपका एक भी नंबर मिस हो। जितने लोग आप फेल शुदगान देखेंगे, एक आध दो तीन नंबर से फेल हुआ हुआ बंदा होगा, ज्यादा नंबरों से फेल नहीं होते बंदे। ठीक हो गया? तो यहाँ से आपको अगर 10 आप नंबर ले लेते हैं तो आप इजीली लॉग एट को क्वालिफाई कर लेंगे। बिल्कुल सर। जी ठीक हो गई, इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी 9:30 बजे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक ओके। यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।